Today is a very important day. My name is Ashok Ojha. As the program director of Yuva Hindi Sansthan, originally it is named as Star Talk Online. We started in 2021, and the Star Talk grant period ends this month. So we are still under the umbrella of Star Talk. However, this spring semester we developed to ensure that the students who came to our original startup program in the summer of 2021 get more opportunities to practice speaking, reading, and writing Hindi. The language that we are teaching, as you all know, StarTalk funding is not available starting this year. So we are on our own. But actually, we are not on our own. We are all connected with each other, with all the parents, and we are supporting each other. So we have decided, myself and my instructors have decided that we will continue conducting the three programs: spring semester, then summer intensive, that's a more intensive daily program for 2 or 3 weeks, and fall, just like any university or college. But our target is making sure that our young learners, from first graders to high school seniors, they have a good foundation of speaking, reading, and writing Hindi. I can say that in the Store Talk summer program, which we started in June 2021, we had about, I think, around 30, 35 students. We continued with the fall semester program, where we allowed both Store Talk and non-Store Talk students. Non-Store Talk students were required to pay a nominal admission fee. The Store Talk kids joined the classes free. They learned more, continued practice, and again in the spring semester. So I think we have done our part. Bless you, Anna, and today's your birthday, so double bless. And Ajay, like Anna's dad asked me, is it too young? I said, no. Even if she's going to go to first grade, she can join our program. And she can learn. Her foundation will continue to improve. With this, my objective was to give you an overview of what we are doing and what we continue doing. Feel free to contact me and email me any question you have. Watch our website, 21stcenturyhindi.com, and there is a blog. You can email me and Lakshmi will edit that to upload. So we have all these resources. After taking so much of your time, I would now let our students showcase what they have learned. There's just a sample. It's kind of enjoyment for you. You'll be proud to know that they have learned quite a bit. And I would ask our instructors, starting with Anju ji, to start the presentation that our kids have prepared. Anju. Dhanyavad Ashok ji. Namaste everyone. My name is Anju Rai. And as Seema ji mentioned, I had the novice class and my co-teacher Akhila Shekhar is also here. And we had Ahana and Ariana in our class. So I'll just want to say we enjoyed the class. We had fun. I also always say the same thing and saying it again. I learned so much from them too, not just me telling them stuff. And I'll just show a few samples what we did in the class. And then let's see. I hope I'm able to share it properly. Namaste sabko, mera naam Akhila hai. So I and Anju ji, as Sanju ji said, were in this novice class, and we all were 4A basically. Everybody's name started with A. Akhila, Yes. Anju ji, Ahana, and Ariana. We had a lot of fun. 4 A's, 4 strong A's Yay. there. And of course, Ashok ji was there behind the scenes, so he was also A. So we had a wonderful time, enjoyed each day.
Even though it was Saturday, Sunday, we used to come. Ariana used to come before time, always 5 minutes before. So that's great. And Ahana always there, encouraging Ariana and helping her out because it's her first session. It was wonderful class. We'll be missing you, Ariana and Ahana. Please come back in summer. Your friends. Yay! Okay, so is everyone able to see my screen? Yes, मेरी- Anju ji. हाँ, okay, धन्यवाद सीमा जी. I hope. Okay. एक छोटा सा सैंपल मैं आप लोगों को बस दिखाना चाहती हूँ. सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है सभी को? जी. कोई बात नहीं, बोलते जाओ. उसके पास सूट है, क्या बात? उसकी सफाई है, है, नकली जानवर है. ओके, ये एक छोटा सा सैंपल था जो हमारे बच्चों ने क्लास में रैप सॉन्ग हम लोगों ने एक्चुअली हम लोगों ने नहीं, बच्चों ने खुद डिसाइड किया था कि वो लोग रैप सॉन्ग बनाएंगे इसके बारे में. तो एक छोटा सा सैंपल वो था और एक मैं ये एक और. बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपका ये आर्याना आहाना जुगलबंदी देख के. This meeting is being recorded. Okay. आहाना शुरू कीजिए. 1, 2, 3, 4. आज इतवार, आज शनि है. आज शनि है, कल इतवार. 7, 8. याद करो. याद करूंगी 5:30. इसके आगे 9 और 10 गिनती होगी कोई बस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बस. ओके, ये छोटे से 2 सैंपल्स थे आर्याना और आहाना के क्लास में हम लोगों ने जो किया था. एक तो जूम रिकॉर्डिंग थोड़ी मेरी गड़बड़ हो गई है तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी अभी, बट ये छोटा सा आई होप बच्चों ने भी एंजॉय किया हो क्लास में. और अभी आप और उन लोगों का थोड़ा सा भी जब हम लोग ड्रामा प्रेजेंट करेंगे तो आप लोग लाइव परफॉर्मेंस भी देखेंगे हमारे बच्चों की क्लास में और भी क्या क्या हुआ था, चीजें हुई थी. तो धन्यवाद. तो मैं सीमा जी को बोलती हूँ आके अपनी क्लास का प्रेजेंटेशन करना. अरे वाह वाह वाह, आर्याना एंड आर्याना आना. बहुत बढ़िया. अंजू जी की क्लास तो एकदम बढ़िया क्लास थी, मजा आ गया देख के. धन्यवाद अंजू जी. तो हम सब लोग देखते हैं माया हमें क्या सिखाने वाली हैं और कितना हिंदी बोलने वाली हैं. नमस्ते सब लोग. आज मैं आमबट पटाटा और एक मिस्ट्री डिजर्ट बना रही हूँ. पहले मैं आमबट पटाटा बना रही हूँ. पहले 4 आलू लें. अब उन्हें छीलें. अब अपना स्टैंड साफ करें. आलू को काट लें. थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ाना होगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है. चलने दीजिए सीमा जी. जी. अब राई और हल्दी डालें.
जब बीज चिकटना बंद कर दें तो आलू डालें। आलू को कोट करने के लिए पानी डालें। अब आधा के नारियल का दूध डालें। ब्लॉगिंग चैनल भी बनाना। This meeting is being recorded. तीनों चीजें एक साथ कर दी माया ने, है ना? चैनल भी बना लिया, हिंदी भी सीख ली और खाना भी बना लिया। अकेला बहुत जी, बढ़िया माया। हाँ जी, आपको भूख लग रही है तो फिर आप हमारे घर भी आ जा सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मैं सबके घर पे आ जाऊंगी दिसंबर जी, में। तो अभी एक्चुअली तन्वी इसलिए कह रही है कि एक छोटा सा तन्वी का भी वीडियो है जो हमें दिखाना है, तो 1 मिनट मैं जरा से निकाल लूं। दाल बाटी तन्वी। नहीं, इस बार तन्वी ने बनाई है कोई और चीज। क्या बात है, चलिए देखते हैं। 1 मिनट। बहुत भूख लगने वाली है सीमा जी। हाँ, वही तो, बच्चों ने बहुत कुछ कुछ बना लिया है और 1 मिनट बस मैं देख रही हूँ कि मैं इसे शेयर कैसे करूँ। जैसे पहले किया था, शेयर स्क्रीन करके। 1 मिनट आशु जी। रसोई में आपका स्वागत है। आज हम नाचोस बना रहे हैं। हाँ जी, सामग्री के आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, अभी ठीक हो गया, आज हम बहुत बढ़िया। नाचोस बना रहे हैं। सामग्री के लिए आपको काला दाल, राजमा, मक्का, शिमला मिर्च, हालापिनो मिर्च, प्याज और एवोकाडो, चीज, sour cream, salsa और tortilla chips। आप एक रात पहले आप काला दाल और राजमा को भिगो लीजिए और उसके सुबह आप फिर कुकर में डालो और 2 सीटी के लिए रख दीजिए। चलो हम शुरू हो सकते हैं। शुरू करने से पहले हमको सब्जियां काटने हैं, चीज भी काटने हैं और नमक नहीं भूल लीजिए स्वाद के लिए। चलो अभी हम शुरू हो सकते हैं असली में। पहले आपको एक बेकिंग ट्रे में बेकिंग पेपर लगाने चाहिए। उसके बाद आप एक लेयर टोर्टिया चिप्स से बनानी चाहिए।
मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखाना होगा। पहले आपका राजमा और काली दाल। ये सारे वीडियोस वेबसाइट पे पोस्टेड होंगे, अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो सभी देख सकते हैं। उसके बाद आपको आप बच्चों चाहिए सीमा जी, जोड़ रहे हैं। कुंद जी कहीं जाना चाहते हैं, मैं उनसे जरा सा कहूँ कुछ कहने के लिए। हाँ, 1 मिनट अशोक जी, ये खत्म हो जाए। हाँ ठीक है। फिर सारे टॉपिंग्स डाल। उसके बाद सारे टॉपिंग्स डाल दीजिए। उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेंगे नाचोस में। और टमाटर के बाद में आप सल्सा और चीज डाल दीजिए। भैया, उसके बाद टमाटर के बात करने हैं तो फिर आप सल्सा डाल दीजिए। इसलिए हम टमाटर नहीं डालेंगे, नहीं तो टू मच टमाटर हो जाएंगे। बहुत सारा टमाटर हो जाएंगे। हो जाएगा। बहुत हार्ड नहीं। फिर चीज। आप एक सेपरेट सेक्शन बना लो, जैसे मैंने की है, जहाँ पे कुछ Enough, चीज enough. नहीं है। इनफ। जैसे एक सेक्शन में कोई सब्जियां नहीं है और एक अलग से चीज डालते हैं। ये मेरे सेक्शन है। यह मेरा हिस्सा है। ये मेरा हिस्सा है। तन्वी खाने के शौकीन है। बहुत अच्छे तन्वी। ओ, ये रुक गया क्या? हाँ जी, मुझे लगा आपने शायद खत्म हो गया वीडियो इसलिए। शेयर स्क्रीन नहीं कर रहे हो। नहीं, 1 मिनट। शेयर स्क्रीन नहीं है वो। हाँ, हाँ पूरा कर। तन्वी बहुत अच्छा है, मेरे तो मुंह पे पानी आ गया है। मैं तो जरूर आने वाली हूँ सबके घर खाना खाने। आवाज बंद हो गई है सीमा जी। ओ, डालने चाहिए और सब्जियां भी नहीं आ रही है डालनी अभी? चाहिए। हाँ अब हाँ ठीक है। जी। उसके लिए थोड़ा सा डेंजरस है। आप 8 साल या ऊपर से ये चीज काम करते हैं तो फिर हम 10 मिनट में वापस आएंगे। अभी के लिए कमर्शियल ब्रेक। तन्वी का मशहूर टाको नाचो डांस। Taco nacho nacho, taco nacho tacho, taco nacho tacho, nacho taco, yahoo! तन्वी का मशहूर नाचोस खाना नहीं भूलना, अभी जल्दी ही पेश होने वाला है। आहा, अभी हमारा नाचोस तैयार हो गया। अब हमको सर्व करने हैं। तन्वी मुझे चीज वाला नाचो चाहिए, ज्यादा चीज, एक्स्ट्रा चीज। नाचोस ठीक है, तो फिर हम 3 हिस्से करेंगे। और सिर्फ 3 हिस्से। हमारा क्या होगा तन्वी? इसमें बच्चों, इसमें तन्वी ने भी 3 चीजें एक साथ की हैं। हिंदी में भी बात की है, आपको कुछ बनाना भी सिखाया है और नाचना भी सिखाया है। तो देखिए,
आपको कैसी लगी तन्वी की ये वीडियो? बहुत अच्छी। अरे वाह 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 वाह, सब लोग को अरे वाह वाह वाह। और असल में ये है कि हम जो मतलब रियल लाइफ के जो सिनेरियो होते हैं उसमें आपको भाषा बोलनी आनी चाहिए। जब आप आम कुछ काम करते हैं घर में, जो नॉर्मल जो आम तौर पर जो बोलचाल की भाषा है, मुझे लगता है वही बच्चों के ज्यादा काम आती है। उसी से वो अच्छे से अपने आसपास के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उनसे घुल मिल सकते हैं। हमारा एक और प्रेजेंटेशन है उद्विता का जो हम दिखाना चाहेंगे, तो पर अशोक जी आप नहीं, बस थोड़ी देख ले, क्योंकि उपेंद्र जी हमारे सभापति जी कहीं जाने वाले हैं। और सुमन जी भी यहाँ हैं। नमस्ते सुमन जी सुमन जी। हैं, आप सबका स्वागत है। और संध्या जी भी आ गई हैं सिंगापुर से, आपका भी स्वागत है। तो ये नमस्ते एक ऐसा अवसर है कि आप देख सकते कि हम किस तरह से बच्चों को वास्तविक जीवन की बातें बताते हुए भाषा को सिखाते हैं। और मैं माया की माँ और तन्वी की माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपना समय देते हैं अपने बच्चों को अपने रसोई घर में कुछ बनाने के लिए या और कुछ सिखाने के लिए। बिल्कुल। तो मैं आपसे क्षमा चाहते हुए थोड़ी देर के लिए जो हमारे सभापति हैं उपेंद्र चुकुला जी, उनसे कहूंगा कि हम सबको हमारे शिक्षार्थियों को शिक्षकों के लिए कुछ कहें। और ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों से आप हमारे युवा हिंदी संस्थान के सभापति हैं और न्यू जर्सी में आपका जो राजनीतिक संपर्क है बहुत ही फैला हुआ है। और आप 8 वर्षों तक न्यू जर्सी असेंबली के सदस्य थे और इन दिनों न्यू जर्सी सरकार के यूटिलिटी डिपार्टमेंट, जिनमें कि बिजली पानी सब बिजली आती है खासतौर से और इंटरनेट वगैरह, उस एजेंसी के आप कमिश्नर हैं। तो अशोक जी लगता है वो उनका कनेक्शन ड्रॉप हो गया। नहीं होंगे। तो उपेंद्र जी आप अगर हैं यहाँ पर तो आप 2 शब्द कहें। उपेंद्र जी, मुझे लगता है उनका कनेक्शन शायद टूट गया है जी। अच्छा, खैर, तो ये परिचय हो गया। और आप सीमा जी, आप इनका उद्विता का जो प्रस्तुतिकरण है उसको आप दिखाएं जरूर, ताकि हमारे जो अतिथि हैं वो देख सके, माता पिता भी देख सकें। जी। तो इन दोनों बच्चों ने, माया और तन्वी ने हमें अपने रसोई घर के हुनर दिखाए और उद्विता हमें कहीं घुमाने ले जा रही है राजस्थान में, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला। तो वहां पर जो उसे हमने ये प्रोजेक्ट दिया था कि वहां पर जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो कुछ चेतावनियां लिखी होती हैं कि आप यहाँ ये ना करें वो ना करें। तो हर जगह की जो कुछ सावधानियां हैं वो हमें उद्विता बताने वाली हैं, तो हम वो आपको दिखाते हैं अभी। आपको हमारी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी जी। तो ये उद्विता ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें उसने एक साइन बोर्ड बनाया था हिंदी में, और उसके बारे में हमें बताया था कि वो क्या कहना चाह रही हैं। ये मेहरानगढ़ किला का सावधानी है और ये फर्स्ट बॉक्स में गिरना का खतरा लिखा है क्योंकि वॉल्स बहुत छोटा है तो हम गिर पा सकते हैं। सेकंड बॉक्स में कोई सेल्फी नहीं क्योंकि वॉल्स बहुत छोटा है तो हम सेल्फी ठीक करते हैं तो हम बैक में क्या है वो नहीं देख कर सकते। थर्ड बॉक्स में कोई सेल्फी स्टिक नहीं क्योंकि हम सेल्फी नहीं ठीक कर सकते हैं तो सेल्फी स्टिक जस्ट यूजलेस है। तो फोर्थ वन में भागो मत क्योंकि ये बहुत ओल्ड है तो कुछ नहीं
कुछ कुछ ब्रोकन है, कुछ कुछ सेफ है, लाइक तो हम नहीं भाग सकते हैं। और 5th वन में कूदो मत, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य पीपल हैं और हम उनके हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि संकरे बहुत रास्ते बहुत नैरो है। और 6th वन में संकरे रास्ते हैं, क्योंकि वो मेहरानगढ़ किला में बहुत नैरो साइडवॉक्स और रास्ते हैं। और 7th में खाना नहीं है, ये वहाँ खाना नहीं है। और 8th में कोई पानी नहीं है। किसी को कुछ पूछना है? और ये है मेहरानगढ़ किला का सावधानी साइन। बहुत अच्छा उद्विता। अरे वाह, बहुत बढ़िया उद्विता। तो उद्विता ने भी हमें सावधानी चिन्ह बनाकर समझाया कि किस तरह से हमें सावधानी लेनी चाहिए हम जहाँ कहीं घूमने जाते हैं। तो ये हमारे बच्चे कुछ इस तरह के कि अगर वो बाहर जाते हैं तो किस तरह से हिंदी को बोलेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे या समझाएंगे। तो ये उन्होंने अपना एक छोटी सी झांकी प्रस्तुत की आपके सामने। और ये बच्चे अभी सीख ही रहे हैं और बहुत कोशिश करते हैं, बहुत उत्साही हैं। और इन सभी के माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे इस कार्यक्रम को इतना सपोर्ट करते हैं, बच्चों की मदद करते हैं रिकॉर्डिंग में, उन्हें जो भी हमें उनके काम को हमारे साथ साझा करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संध्या जी जो हमारी वरिष्ठ शिक्षिका हैं उन्हें बुलाना चाहूंगी कि वे अपने कक्षा की प्रस्तुतियां दें। एक छोटी सी टिप्पणी है मेरी जी। कि उद्विता हमारे कार्यक्रमों में स्टार टॉक मेरे ख्याल से उसके पहले से भी आ रही है, और उसके वो गैर हिंदी परिवार की है, यानी कि उसके घर में हिंदी नहीं बोली जाती। इसके बावजूद जो उसने सीखा है कक्षा में सीख करके उसने जीवन से जोड़ा है। और ये जो वीडियो दिखाया उससे मालूम होता है कि हमारे बच्चे कहीं भी टूरिस्ट प्लेस, दर्शनीय स्थल पे जाकर के जो छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान रखते हैं। और उसके लिए वो कितना जरूरी है टूरिस्टों के लिए, इस बात पर उद्विता ने ध्यान दिलाया। और ये मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी सफलता है कि बच्चे हिंदी में इस तरह की जो जानकारी है सबके साथ साझा कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास बच्चों के बहुत से वीडियो हैं, मतलब मुझे खुद ही संतोष नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास इतना सारा उनका काम है जो मैं दिखाना चाहती हूँ, पर समय की हमारे साथ थोड़ी सी समय की सीमा है। तो इसलिए पर जब भी आगे मौका मिले हम वेबसाइट पे वो डालेंगे। उनके बहुत सारे रोल प्ले हैं जिनमें इतने बच्चे अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स लगाकर रोल प्ले करते हैं कि कोई गाइड बना है, कोई टूरिस्ट बना है, कोई दुकानदार बना है। उसकी एक झलकी अभी आप संध्या जी ने जो नाटिका तैयार की है उसमें भी देखेंगे। पर हमारे पास उनके बहुत सारे काम हैं जो हम आपके साथ वेबसाइट पे शेयर करेंगे, तो आप प्लीज वहां जाके देखिए। तो अब मैं संध्या जी से आग्रह करूंगी कि संध्या जी आप अपनी कक्षा के बच्चों के बारे में कुछ बताएं और फिर सभी बच्चों ने मिलकर जो नाटिका तैयार की है उसे आगे बढ़ाएं। संध्या जी। धन्यवाद सीमा जी। सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ संध्या भगत फ्रॉम एटलांटा and I teach Hindi. I'm teaching Hindi actually since last more than 40 years, India में भी and then in America. And मैं एक थिएटर ग्रुप चलाती हूँ अटलांटा में पिछले 15 सालों से, और स्टार्टअप से जुड़ी हूँ 2010 से। तो ये हमारा जो प्रोग्राम था स्प्रिंग का, इसमें हमने राजस्थान और लद्दाख के बारे में बच्चों को कुछ नई जानकारी दी। और मेरी कक्षा के बच्चे थोड़े सीनियर हैं तो वो लोग थोड़ा ज्यादा बोल पाते हैं। एक बच्चा ऐसा था जिसका की लेवल थोड़ा कम था, पर हमने किसी तरह से दोनों बच्चों की बातचीत आपस में करवाई। और
मैं कुछ छोटा सा एक सैंपल दिखाना चाहती हूँ हमारी कक्षा की एक्टिविटीज का। ये दोनों 3 वीडियोस हैं, साथ साथ जुड़े हुए हैं और हमने इनको छोटा किया है क्योंकि काफी सारी रिकॉर्डिंग थी, तो सब कुछ दिखाना तो संभव नहीं है, तो मैं ये चलाती हूँ अपनी कक्षा का कार्य। जस्ट कुछ सेकंड लगेंगे। सब लोग देख पा रहे हैं ना? हाँ हाँ जी। ठीक है। मुझे नाचना बहुत पसंद है। मैं अपने भाई को नाचना सिखाती हूँ। आगे देखो मेरी वीडियो। नमस्ते, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। मैं अपने परिवार के साथ खेलती हूँ बैडमिंटन मेरे बैकयार्ड में। ये है सिक्का, ये है चिड़ी। धन्यवाद। नमस्ते, आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम वैष्णव है। आपका नाम क्या है? प्रीशा। आपकी एज क्या है? तू कितने साल के हो आप? मैं 11 साल का हूँ। किधर रहते हो? आप किधर रहते हो? मैं अमेरिका रहता हूँ। अच्छा, आपको क्या पसंद है? मैं खाना पसंद है। आपका नाम क्या है? आपका स्कूल का नाम क्या है? मेरे स्कूल का नाम समरफील्ड चार्टर। आप कभी जयपुर गए हो? नहीं, मैं जयपुर नहीं जाना। Is that right? गया हूँ। आपको हवा महल देखना है उधर? नहीं, मैं हवा महल नहीं। अच्छा, आपको पसंद है हवा महल? और आपको पसंद है? आपको हवा महल पसंद है? क्यों पसंद है? अच्छा, कि रंग। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। मैं आज मैं बात करूंगी सेट मॉल्स स्कूल में बारे। सेट मॉल स्कूल बना था 1988 में। एक सोहम एक था, एक आदमी थे, उन्होंने एक इंजीनियर थे, उसने बनाया ये स्कूल बनाया है। पहले 1988 में 95% बच्चे फेल होते थे। ये स्कूल बना है, ये पाठशाला बना है, 95 लोग फेल हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छा है स्कूल में। एंड ये स्कूल बच्चे को कहते हैं कि आप भी पढ़ो। ये ऐसे नहीं कि टीचर उधर है ये पढ़ाई है, पर ये है कि आप भी बच्चे बाहर जाएंगे, स्पोर्ट्स कोई गेम खेलेंगे, कोई स्किल्स को देखते हैं। स्किल कैसे होना चाहिए, स्किल्स को बेस में कहते हैं कि ये ऐसे करो, आप
ये पढ़ाते हैं। लाइक आपने वीडियो देखी है, वीडियो में एक डोर है, उधर उन्होंने एंगल्स बनाए हैं, ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये ऐसे ऐसे ये करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं उधर कोई ऐसे नहीं कि कंप्यूटर देखना, ऐसे नहीं, नेचुरल चीज सिखाते हैं। उधर बच्चे ने ये पाठशाला लाइक बनाया भी है, डिजाइन भी किया है। ये बच्चे का सोच था कि ये मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मे बी मैं ऐसे कुछ कोई हैंग कर सकता हूँ, ऐसे कोई वुड ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे मैं कोई सोच थी। उधर कोई भी रूल नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ये उधर का कुछ भी कर सकते हैं। उधर ये लाइक कुछ लाइक मैं उधर होंगी, मैं सोचती हूँ कि मैं मे बी कुछ ग्रुप पढ़ाऊँ, कोई छोटा सा ग्रुप पढ़ाऊँ, उधर हम गेम खेल सकते हैं, हम भाग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि लाइक इधर स्कूल में होता है कि ये आपको ये पाना करना है, आपको फोन यूज करना नहीं है, ऐसे ये लाइक फ्री है सब कुछ। धन्यवाद। अच्छा प्रिया, एक सेकंड में रिकॉर्डिंग को स्टॉप कीजिए। ये बहुत बढ़िया था संध्या जी। संध्या जी, प्रीशा हमारे साथ कई वर्षों से आ रही है, 2018 से, और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब नई वो आई थी तो बहुत उसमें एक संकोच था कुछ भी हिंदी बोलने में, और हमने प्रयास किया, उसको कभी हमने ये महसूस नहीं होने दिया कि उसको दूसरों से कम आती है। आज आप देखिए उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, संजय जी आप बता सकती हैं, वो कितना आगे बढ़ा हुआ है कि वो दूसरे बच्चों को प्रोत्साहित करती है, उनके साथ बातचीत करके उनके जो हिंदी बोलने की क्षमता है उसको बढ़ा रही है। मैं समझता हूँ कि उपेंद्र जी शायद आ गए हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसके पहले कि हम लोग बाकी कार्यक्रम करें, संध्या जी भी हैं, संध्या सिंह जी सिंगापुर से, उनसे भी सुनना चाहेंगे। हमारे कौंसलावास से सुमन जी आ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी से भी कुछ बात सुनना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले शायद उपेंद्र जी को कहीं जाना है। तो उपेंद्र जी हमारे सभापति हैं युवा हिंदी संस्थान के, और उनके समर्थन से, उनके सपोर्ट नमस्कार जी। ये अशोक ओझा जी और टीचरों ने बहुत अच्छा काम किया। ये विद्यार्थियों के वो खाना पकाने में देख के हमको भी भूख लग रहा है। बहुत अच्छा खाना पकाया है। ये तो डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा है। ऐसा प्रोग्राम करने के लिए सबका सपोर्ट चाहिए। मुझे बहुत खुशी एक बात है कि अशोक ओझा जी ने सभी टीचर के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है ये तो, लेकिन वो परसिस्टेंटली वो काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी आती है। तो ऐसा छोटा बात करके मुझे आपसे विराम लेता हूँ। नमस्कार। अशोक जी आप म्यूट हैं। उपेंद्र जी, आपको आपके 2 शब्द के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे शिक्षक, माता पिता और बच्चे, एवरीवन इज प्रेजेंट। तो सीमा जी, संध्या जी, प्लीज अलाउ मी टू रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल संध्या सिंह जी, who is with us for the first time from Singapore। वहाँ पे विश्वविद्यालय में she teaches हिंदी, और हमने उनको विशेष तौर पे यहाँ पे बुलाया है। We have invited her to exactly see how our kids are learning. So, what do you think, संध्या जी? आप कुछ कहिए, हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस आमंत्रण के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जुड़ करके और देख करके कि बच्चे जो जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल वे में सीखना, उस तरह से वो सीख रहे हैं कि कहाँ उन्हें भाषा की जरूरत पड़ सकती है या पड़ेगी भविष्य में या अभी वर्तमान में, और उन्हीं पहलुओं को ध्यान में रख करके अध्यापक सिखा रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं। माता पिता का बिल्कुल इसमें सहयोग होगा। और जो जिस तरह से आपने बताया कि कुछ बच्चों ने अभी सीखनी शुरू की है, लेकिन उनमें भी वो झिझक नहीं है, क्योंकि वो किताबी भाषा ना सीख करके
चाहे वो साइन बता रहे हैं कि हाँ इस तरह से आप कर सकते हैं, ये चीजें नहीं कर सकते हैं, या खाना बनाने की विधियों की बात उन्होंने की, तो ये दिखाता है कि उनकी रुचि उनमें उसमें विकसित हो रही है कि ये चीजें, हाँ वो अगर कभी जयपुर घूमने जाएंगे तो हो सकता है उन्हें इस तरह के साइन बोर्ड देखने को मिले और तब वो पढ़ पाएंगी। तो ये, और चाहे खाना बनाने की बात हो, वो बेसिकली उसमें इम्पेरेटिव्स और कमांड का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि जीवन में आम बोलचाल की भाषा में सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। तो ये चीजें इतने रोचक ढंग से उन्हें बताई जा रही हैं, तो मैं इसके लिए साधुवाद देती हूँ आप सभी को। और बहुत अच्छा लगा कि आज मैं थोड़ी देर के लिए ही सही से जुड़ सकी, और आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हार्दिक आभार आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। अभी तो हमारा लाइव परफॉर्मेंस स्किट का होने वाला, आप लोग जरूर रुकें। सुमन जी, आपको पास समय थोड़ा होना चाहिए ताकि हमारा कार्यक्रम भी आप देख सकें। जी जी, मैं तो आपसे मैं बाद में आपको आमंत्रित करूंगा बोलने के लिए। इसके पूर्व जो हमारा स्किट है, संध्या जी, सीमा जी, आप लोग उसको दिखा सकते हैं। अशोक जी, थोड़ा सा मैं प्रीशा ने जो बताया उसके बारे में बात करना चाहूंगी। वो जो लद्दाख में एक खास स्कूल है जिसको कि सोनम वांगचुक ने बनाया है, एक्चुअली उन्होंने ही शुरू किया, और उन्होंने, प्रीशा ने वही सब बताने की कोशिश की है और उसने पूरी व्याख्या अपने शब्दों में की है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे बोल सके, कहीं पे हो आप बता सकें। तो उसने वो पूरा बताया है विस्तार से अपने इस वीडियो में कि किस तरह से वो स्कूल बनाया गया, और जो बच्चे असफल हो जाते हैं, जो हमारा एक सिस्टम है उसमें, पर वहां पे वो उन सब बच्चों को बुलाते हैं और वो बच्चे फिर वहां पे बहुत अच्छा करते हैं। तो प्रीशा, धन्यवाद बेटा। और प्रीशा की आज तबीयत ठीक नहीं है, पर वो उसने ज्वाइन किया है हमारी नाटिका के लिए। जैसा कि पहले बात हो रही थी कि हमारा जो विषय था इस बार राजस्थान और लद्दाख, उसी के बारे में हमने थोड़ी सी और जानकारी दी बच्चों को, वहाँ के इतिहास के बारे में, और हमने जयपुर को जोड़ा। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है। तो अब हम एक छोटी सी नाटिका दिखा रहे हैं जो बच्चे अभी परफॉर्म करेंगे। इसका नाम हमने रखा है हवा महल के झरोखे से। तो आइए देखें क्या कहते हैं ये नन्हे बच्चे, होनहार बच्चे और किशोर बच्चे। धन्यवाद। ऋषा, आप शुरू करेंगी बेटा, ठीक है? Whenever it is your turn, please unmute yourself, okay? सब Ahana and बच्चे Ariana, we will let you know. सब बच्चे तैयार हो जाएं और प्रीशा आप शुरू करें, आप सूत्रधार हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रीशा। मैं आज आपको हवा महल में बात बताऊंगी। ये देखिए, ये हवा महल है। ये हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं क्योंकि उधर लाल एंड गुलाबी स्मारक होते हैं। ये हवा महल को राजा सर प्रताप ने बनाया था 1799 में बनाया था। ये मुकुट आकार का है। ये मधुमक्खी का छाता में जैसे दिखता है। ये उस्ताद लाल सिंह ने लाल चंद्र उस्ताद ने ये बनाया था, डिजाइन किया था। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। ये देखिए, इधर पांच मंजिल है। ऊपर मंजिल में सीढ़ियां नहीं है। अब आराम से जाना बेटर है। मुझे लगता है प्रीशा का कनेक्शन हैंग हो गया है क्या? ओके, ठीक है। 953 मंजिल झरोखे है। कि प्रीशा का हैंग हो रहा है।
जी तो आगे का मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि 953 झरोखे हैं। इन झरोखों के पीछे बैठ, हाँ बोल रही हो प्रीशा? नाटक हम देखे हवन नाटक। जी तो माया। महाराज, बाहर बहुत गर्मी है पर हवा महल के अंदर बहुत ठंडक है। दूर दूर तक लोग गर्मी से परेशान है। देखिए, वे लोग ऊंट पर जैसलमेर के सामान ला रहे हैं। हम दोनों झरोखे के सामने बैठकर बाहर के नजारे देखते हैं। अवश्य महारानी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ यात्रा भी देख रहे हैं। लगता है पूरे दुनिया से लोग जयपुर घूमने आते हैं। देखिए महाराज, उस दुकान पर कितना सुंदर सामान मिल रहा है। कपड़े, गहने और सजावट के सामान भी है। मुझे तो वो बड़ा चोकर और ओढ़नी चाहिए। ठीक है महारानी, आपको जो चाहिए ले सकते हैं। मैंने अभी दरबार उस दुकानदार वाले को बुलाते हैं। दरबान, जाओ उस दुकानदार को ऊपर बुलाओ। अम्मा घनी, प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। आपका दुकान बहुत सुंदर है। आप क्या क्या चीज बेच रहे हैं? मैं राजस्थानी कपड़े, लहंगा, ओढ़नी, घाघरा, धोती, मोजरे और गहने बेच रही हूँ। मेरे पास राजस्थान का बना सजावट का सामान भी है, लाख से बना सामान भी है। आपको और महारानी को क्या खरीदना है? मुझे ओढ़ने और वो चोकर पसंद है। मुझे वे दोनों चाहिए। जो आज्ञा महारानी, अभी लाती हूँ। पारंपरिक का डिजाइन का हार है। ये लीजिए चोकर और ओढ़नी। क्या आपको कुछ और लेना है? नहीं, ये लो सोने के 10 सिक्के। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महारानी। देखिए महारानी, मेले में बहुत सारे तमाशे वाले भी है। वो देखिए, रेगिस्तान के जज ऊंट भी है। जी महाराज, कितना सुंदर नजारा है। बहुत सारे जानवर और मकोटे वाला भी है। संगीत भी बाज रहा है। Ahana, Ariana. Unmute yourself, both of you. ऊंट ऊंट के पास खोर है, खोर। Ariana, Aja Ariana, you can do it. Aja. ऊंट ऊंचा है, ऊंचा। बहुत अच्छे। Ahana, ऊंट के पास 3 पलका है, पलका। बहुत अच्छे। Ariana, ऊंट के पास गोबर है, गोबर। शाबाश। वाह, तमाशा तो बहुत अच्छा था। जानवरों को देखकर बहुत मजा आया। गाना भी बहुत बढ़िया था। अब तो सूरज ढलने लगा था। गाने छोड़ दीजिए और खाना के बात कर दीजिए। भोजन के समय हो गया है। आप आज क्या खाना पसंद करेंगे? हाँ महाराज, मुझे भी बहुत भूख लगी है। कुछ खाते हैं। मेले में तरह तरह के पकवान मिल रहे हैं, मिठाई भी है। दरबान, जाओ उस खाने के दुकान वाले को बुलाओ। महारानी की, महाराजा की जय हो। आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आपके पास कौन मेरे पास राजधानी का खाना है, थाली है, उसके है दाल बाटी है, जो गट्टे की सब्जी भी है।
एंड लाइक दिल्ली की थाली भी है। ठीक है, हम हमारे लिए राजस्थान के थाली लेकर आई हो। अच्छा ही, देखती हूँ। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। ये लो सोने के 5 सिक्के। धन्यवाद महारानी जी, खम्मा खानी। Sorry. उद्विता हाँ, तो देखा आपने, ये था हवा महल के झरोखे से जयपुर की बाजार का एक नजारा। आशा है आपको राजस्थानी वेशभूषा, भोजन, महल और वहाँ की संस्कृति अवश्य पसंद आई होगी। रंग बिरंगे राजस्थान का गर्म रेगिस्तान, सुंदर नृत्य, स्वादिष्ट व्यंजन, स्मारक और वहाँ की संस्कृति हमेशा से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप भी अपनी छुट्टियों में भारत जाएं और राजस्थान को अपनी आंखों से देखें। हमें विश्वास है कि आपको भी राजस्थान बहुत पसंद आएगी। नमस्कार। आर्याना, आहाना। हाँ, 1 मिनट। हाँ, आर्याना और आहाना का कंप्लीट रह गया ना, हाँ वो करवा दी। आहाना, आर्याना ऊंट चला वो गाना सुना दो सबको और आपका रैप। आहाना शुरू कीजिए, अनम्यूट कीजिए आहाना, अनम्यूट। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता टिलता ऊंट चला, इतनी ऊंची ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, बालू है तो होने दो, वो जो उठ को रोने दो, इसके मालूम में भी ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता टिलता ऊंट चला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे वाह, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बच्चों। तो अशोक जी आगे सबको अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। तो ये रहा हमारे हिंदी विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान, उनकी प्रस्तुति। ये सब कुछ हम लोग एक पूर्व नियोजित ढांचे के अंतर्गत पूरा हम करते हैं और आपने देखा, और ये सिलसिला आगे भी हम चलाते रहेंगे। हमारे बीच भारतीय कौंसलावास न्यूयॉर्क के प्रतिनिधि मुख जी हैं। आप जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो अपने को म्यूट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि सुमन जी से हम कुछ उनकी बातें सुने, हमारे लिए क्या संदेश लाई हैं। सुमन जी। नमस्कार आप सभी को। मेरी तरफ से, कौंसलावास की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए ये देखकर, आपके सब जो प्रोग्राम्स थे देख के बहुत अच्छा लगा कि हिंदी को आप इतना बढ़ावा दे रहे हैं। भारत की संस्कृति के बारे में लोग बच्चों को बता रहे हैं, भारत के त्योहार हैं, भारत की जो भी जगह हम जाके देख सकते हैं उसके बारे में बच्चों को इतना बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। मैं बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि आप इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब हम भारत में होते हैं तब ये हमारे जीवन में, जीवन शैली में मिला हुआ होता है कि हमें कुछ सीखने की, मतलब ऐसे एफर्ट नहीं करने पड़ते कि हम अलग से हिंदी को सीखें बस। लेकिन बाहर से दूर रह के तो हिंदी को बिल्कुल यहाँ देख के लगता है कि बच्चों को कितनी जरूरत है ये सब सीखने की, और आप लोग ये सब कर रहे हैं कार्य। ये मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं युवा हिंदी संस्थान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब आए कौंसलावास में, कौंसलेट में आए और बच्चों को भी लेके आए, उनके माँ बाप को लेके आए, ताकि हम लोग भी मिल पाए। इसमें तो वर्चुअल प्रोग्राम में तो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर मिले जुलेंगे, अब थोड़ा सा पेंडेमिक के बाद थोड़ा लगता है कि थोड़ा ठीक है, तो हम आप सबको आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप सबको लेके आए, कुछ प्रोग्राम करें तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर सुमन जी। और कौंसलावास की तरफ से जो हमको समर्थन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज ही पूछ रहे थे हमारे बच्चे कि आप कुछ प्रमाण पत्र भेजने वाली थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से थोड़ी सी किताबें भी हैं, अगर आपको लगेगा कि बच्चों के लिए सुटेबल हैं तो आप उनको बिल्कुल दीजिए, और जिस भी तरह से आप उनको पहुंचा पाए वो अच्छा रहेगा। और बच्चे आपके बहुत होनहार हैं, सबसे पहले तो बच्चों को ही ये कहना पड़ेगा कि दे आर वेरी गुड। यहाँ अब हम ग्रीष्मकालीन इंटेंसिव कार्यक्रम की तैयारी करेंगे, लेकिन भारतीय कौंसलावास के नाम से और सीमा जी कह रही थी जो हमारा एम्बलम है 3 शेर के साथ, जो भी समर्थन मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है बच्चों को, जी, शिक्षकों वो को अच्छा लगता है। भिजवा देंगे हम, मेरे ख्याल से जा भी चुके हो शायद, पर मैं एक बार फिर से देख लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुकुन जी, और आपने अपना समय निकाला, आप यहाँ आई। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारी वरिष्ठ शिक्षिकाओं से, संध्या जी से, सीमा जी से, अंजू जी से, अखिला जी से, कि जो माता पिता आए हैं उनके भी मन में कुछ ना कुछ बातें चल रही होंगी हमारे बारे में, हमारे कार्यक्रम के बारे में, और समुदाय में, समाज में इस बात को बताने के लिए कि हमारे और बच्चे हेरिटेज कम्युनिटी और नॉन हेरिटेज दोनों तरफ से हम चूंकि अमेरिकी समाज के एक प्रमुख अंग हैं, हमारे आने वाले कार्यक्रमों में आए ताकि वो भारत के बारे में और हिंदी के बारे की शिक्षा एक औपचारिक ढंग से प्राप्त कर सके। सीमा जी। जी अशोक जी, तो जैसे आपने जो बच्चों के हमने वीडियो दिखाए उसमें भी आपने देखा होगा कि माता पिता का सहयोग बिल्कुल निरंतर बना रहता है, और ये तो एक कह सकते हैं कि एक मुट्ठी है जिसमें माता पिता, अध्यापक, समाज और बच्चे सभी मिलकर जब काम करते हैं तभी उस मुट्ठी में ताकत होती है। तो काउंसलावास भी हमें जिस तरह से एकदम निरंतर सहयोग देता है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और संध्या जी, आज आप यहाँ आई, हम सबके बीच में हमारे बच्चों की प्रस्तुतियां देखी, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी माता पिता को धन्यवाद कि जो यहाँ पर बहुत से स्कूलों में हिंदी है भी नहीं, उसके बावजूद वो अलग से समय निकालकर बच्चों को ये भाषा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। तो मैं चाहूंगी कि माता पिता उन्हें जो भी इस कार्यक्रम के दौरान जो भी अनुभव हुए हैं वो हम सभी के साथ साझा करें, ताकि हम अपने कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाने का प्रयत्न करें और बच्चों को उससे लाभ हो। तो अगर कोई माता पिता अपना कोई भी कुछ कहना चाहते हों या हमारे लिए कोई संदेश हो तो कृपया बताएं। I think Sonia is introducing herself to our program as a non-heritage parent. Sonia, would you like to say something? Oh, yeah, I was just trying to get a feel for the program. I think, I was interested pre-COVID when it could be in person, because the kids were on Zoom a lot during the COVID period. And so it's actually very impressive. I mean, the way the kids can speak, the fluency, it's hats off to you. It's obviously it's working. However you're doing it, it's working. I mean, I think, as I mentioned to you when we originally spoke, I'm born and raised in America, so I'm non-Hindi speaking. My parents really practiced their English with me than the other way around. So I have been kind of struggling to figure out how to impart the language to my kids. I mean, I'm trying to learn it myself, but little trickier. So just trying to figure that out. But really, really great job. The kids have done really well. Thank you. We'll be in touch. अंशुल जी कुछ कहना चाहती हो? माया? मैं सीमा जी और पिंकी जी को धन्यवाद देती हूँ। मुझे हिंदी क्लास में बहुत मजा आया और बहुत सीखने को मिला। माया, आप जो कह रहे हैं ना हिंदी में पूरी बात, उससे ही हमें मजा आ गया। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा माया आपके साथ। पिंकी जी कहिए कुछ। मैं वही बोल रही हूँ कि बच्चों के साथ उद्विता, माया और तन्वी, इन तीनों की एनर्जी इतनी अच्छी है कि उनको कुछ भी पढ़ाना इतना आसान हो जाता है। उनके साथ बहुत मजा आता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा माया, तन्वी, उद्विता। धन्यवाद पिंकी जी।
आसान हो जाता है और एक हमारे सामने एक चैलेंज भी होता है कि अब इन्हें हाँ। क्या सिखाया जाए नया, और ऐसा कि जो ये अपने व्यवहारिक जीवन में काम में ला सके। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे बहुत ऊर्जावान होते हैं उनके साथ टीचर का काम बहुत और भी बढ़ जाता है कई गुना। अजय, अजय जी, रचना जी कुछ बोलना चाहेंगे? Maya's mom is herself an accomplished teacher, and she's very kind to us to send Maya to our program more than once, and we are very thankful to you for that. Anshul ji, you would like to say something? हाँ बिल्कुल, मुझे याद है जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तभी हमने आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया था, एंड यू नो थैंक यू फॉर लॉट्स ऑफ रीजंस। सबसे पहले ऑब्वियसली आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं सब टीचर्स, अशोक जी, आप, एंड यू नो मुझे दिखाई दे रहा है कि माया में ही इतना कॉन्फिडेंस उसका बढ़ गया है, यू नो जब से उसने शुरू किया टिल टुडे। सो जब वो पहले बहुत हेजिटेंट थी हिंदी में बात करने के लिए, डर रही थी, और अब यू नो बहुत कॉन्फिडेंस है, सो दैट्स रियली नाइस। और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आपके वैरायटी प्रोग्राम्स में। सो आप स्टेम प्रोग्राम्स कर रहे थे, मुझे याद है आपने साइंस प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स घर में यू नो फैमिली के साथ करने को प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए थे, वो मुझे पसंद थे। ये प्लेस पसंद थे, कविताएं पसंद थी, यू नो लॉट्स ऑफ वैरायटीज, राइट। और इट्स रियली कूल आपने जो प्रोग्राम तैयार किया है। और सबसे ज्यादा आई नो एज अ टीचर कितना मुश्किल है जूम से सब सिखाना, इट इज नॉट इजी। सो हैट्स ऑफ, रियली हैट्स ऑफ to all of you for bringing your A game. I cannot thank the teachers enough. So please keep up the fantastic work. And you are doing great work and doing us a favor by really, really imparting all of your knowledge and your expertise and taking the time with our children. Such an important job. So uske liye bahut dhanyawad aap sabko. Thank you, thank you. So Seema ji keeps telling me these three children, Maya, Tanvi and Udvita, their learning growth has been very fast. Their proficiency has gone up also, Prisha. And we have plans for them to take them to the Seal of Bioliteracy. We are working on that, and we will introduce them to the Seal of Bioliteracy in near future. But right now, I hope Vanita ji wants to say something, a very committed supporter of our program. Vanita ji? सबके लिए प्रोग्राम सबके लिए धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, तानवी बोल रहे हैं। हाँ, मम्मी है आपकी, कुछ कहना चाहती हैं? ओझा जी, मैं अजय नमस्ते करता हूँ आपको। हाँ अजय। यस, तो मैं एक बात डेफिनेटली बताऊंगा कि पेंडेमिक वाज नॉट गुड इन मेनी वेज, बट अगर मैं हिंदी प्रोग्राम के बारे में बताऊं तो आहाना के लिए और हमारे लिए ये ब्लेसिंग हो गया, क्योंकि पहले ये प्रोग्राम न्यू जर्सी वगैरह चलता था तो हमको पार्टिसिपेट करना मुश्किल था। लेकिन पेंडेमिक की वजह से ओझा जी ने कहा कि अजय आप भी इसमें आहाना को पार्टिसिपेट करा सकते हो, तो दैट वाज रियली ग्रेट। और आहाना हैड अ ग्रेट टाइम, मतलब जो इम्प्रूवमेंट हमने देखा, या जैसे अंशुल जी ने शायद बताया, राइट, इस प्रोग्राम से जनरल नॉलेज भी बढ़ रहा है। मेरे को लद्दाख के बारे में कुछ चीजें नहीं पता थी जो आहाना मेरे को बता देती और वो हिंदी में बताती है, या ऊंट और मतलब लद्दाख और राजस्थान का कंपैरिजन जो एक्सरसाइज वगैरह था, दैट वाज सो इम्प्रेसिव। तो यू गाइस, सब लोग बोल रहे हैं और मैं भी कहूंगा, यू गाइस आर डूइंग द बेस्ट। इट्स अमेजिंग हाउ इन अ मैटर ऑफ 10 वीक्स और 20 क्लासेस टू बी प्रिसाइज, आई कैन, बहुत ज्यादा बदलाव है आहाना में और वो काफी सारी चीजें सीख गई है। और शुरू में होता है ना, सैटरडे संडे बच्चों को छुट्टी चाहिए तो क्लास इज नॉट समथिंग दे लुक अप टू, बट जैसे ही क्लास खत्म करके वो वापस आती है, शी हैज सो मच एनर्जी, शी इज रिफ्रेश्ड। तो डेफिनेटली लॉट ऑफ कुडोस टू द स्टाफ, मतलब जो टीचर्स हैं, दे
वो सिखा नहीं रहे हैं, वो उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं उनके कॉन्वर्सेशन में, तो बहुत मजा आता है उनको. सो थैंक यू सो मच. Thank you, Ajay. You have been helping us expanding our information, our program to your state, North Carolina and beyond. Yes, And, absolutely. Yeah, Uditwa is from Texas. So Yeah. we are expanding. That's what we want. Still need more learners. So we'll prepare for our summer intensive program and we'll work with you, all the parents. I think Sandhya ji wants to say something. Sandhya ji. और अजय जी एक बात मैं बताना चाहूंगी, आपने कहा 10 वीक्स, ये 10 वीक्स नहीं, बिल्कुल आधा समय था, 5 हफ्ते और सिर्फ 10 क्लास. नहीं, लेकिन उसके पहले भी तो थी ना वो. हाँ, मैं कंबाइंड बोल रहा था. कंबाइंड स्प्रिंग सेशन और मतलब समर सेशन एंड दिस सेशन. बिल्कुल. या बट आहाना बहुत एंजॉय की, वो मिस करती है आप सबको. धन्यवाद. हम भी जब नहीं रहते एवरी सैटरडे संडे. संध्या जी. हाँ अजय जी, आपसे मैं पूर्णतया सहमत हूँ. ये जो हम बच्चों को सिखाते हैं तो हमारा भी ज्ञान बढ़ रहा है. हम भी लद्दाख के बारे में विशेषकर हम लोग इतना नहीं जानते थे. कल मैं किसी के घर में गई और उन्होंने लद्दाख का कोई वीडियो लगाया हुआ था और वहां पे नुब्रा वैली और ये सब आ रहा था और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई. मैंने कहा यही तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं. तो हम सबका ज्ञान बढ़ रहा है बच्चों के साथ साथ. बिल्कुल बिल्कुल. धन्यवाद. और एक ये बात होती है कि शिक्षक बनने में सबसे ज्यादा सुविधा ये होती है कि यू आर ऑलवेज विद यंग ब्लड, सो यू नेवर गेट ओल्ड. यू ऑलवेज लर्न नई नई शैतानियां, नए नए आप कह सकते हैं कि नई नई चीजें, नए नए वीडियो गेम्स, नए नए गैजेट्स, एवरीथिंग. वो बच्चे आपको इतना सिखाते हैं. तो ये हमेशा 2 वे प्रोग्राम होता है. टीचर बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजी हम बच्चों से सीखते हैं. एंड दे ऑलवेज सरप्राइज अस. तो थैंक यू अपने बच्चों को हमारे पास भेजने के लिए. ये तो बिल्कुल सही है सीमा जी. और संध्या जी, मैं संकोच रहा, लेकिन मैं अभी खुद कह सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक हिल है वो तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था. और मैं सोचता हूँ कि उसको अनुभव करें किस तरह से वो पर्वत गाड़ियों को या चीजों को अपनी ओर खींचता है, बंद गाड़ी को. तो बहुत ही अजीब है. और दूसरी बात, 953 झरोखे हैं, ये मुझे मालूम पड़ा. तो हम सब लोग, आप लोग बहुत ही नई नई जानकारी भाषा सिखाने के क्रम में ला रहे हैं. दैट इज ए ग्रेट accomplishments, and all of you deserve lot of kudos and support. So I would like to say, and I think और कौन सीमा जी और किसी कुछ कहना है? मेरे ख्याल से जो रह गए हैं. तन्वी की मम्मी को कुछ कहना है. हाँ, वनीता जी कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ जी, ये कहना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए. जैसे पहले और पेरेंट्स ने भी बोला, ये जो है आपका ऑनलाइन होने की वजह से हम भी कर पाए. मैं देख रही थी कि तन्वी के किसी तरह से हिंदी बोलना सीखे, बोले थोड़ा. तो अब तो आप देख ही चुके हैं कितना बोल लेती है. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. आपने अपना किचन दे दिया उसके बहुत किचन अभी नहीं दिया, किचन तो मेरा कब का जा चुका है. अच्छा, नहीं, इतना सहयोग बहुत अच्छा है. पर विनीता जी, आपका बहुत सपोर्ट रहता है. आप हमारे प्रोग्राम को बहुत सपोर्ट करती हैं और हमेशा कोई भी चीज हो वनीता जी के पास से एकदम फटाफट 1-2 मिनट में ही आ जाती है. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप बहुत क्रिएटिव भी है वनीता जी. थैंक यू आपका. मतलब अभी जैसे आपने इतना इंस्टेंटली तन्वी को इतना अच्छे से राजा बना दिया, महाराजा का लुक पूरा बहुत अच्छा लगता है. नहीं, वो तो फिर है ना, आप लोग भी इतना उसमें आपका भी इतनी मेहनत रहती है उसको करने के लिए, तो थोड़ा बहुत तो हमें भी साथ देना चाहिए, तभी मजा आता है. सबके साथ में सबका मिल करके ही अच्छा बनता है. तो ये जब ड्रामा करते हैं ना तो आधा असर होता है कि वो कैसे ड्रेसअप होते हैं. फिर कोई छोटी मोटी गलती भी हो ना तो वो ढक जाती है. और तन्वी मतलब एकदम जबरदस्त आपने उसको तैयार किया. बहुत बहुत धन्यवाद. और वो ऐसी बच्ची है, मैंने देखा है कि वो ना हारती नहीं है, वो बोलती जाती है. ये कोशिश नहीं छोड़ती, इन बच्चियों में हाँ नोटिस किया मैंने. ये जो चारों लड़कियां हैं
हाँ ईशा जी। को भी मिला और के ये ये लोग मेरा बोलते हैं सौभाग्य है कि ऑल आवर इंस्ट्रक्टर्स, हमारे सभी शिक्षक एक्सक्लूसिवली अलग अलग शैलियों में, स्टाइल में, दे आर एक्सपर्ट्स। जैसे संध्या जी ड्रामेटिक्स, थिएट्रिकल, हमारी पिंकी जी नहीं है हमारे साथ, लेकिन आर्ट वर्क में वो बहुत एक्सपीरियंस हैं। इनके होने से हम लोग इतने छोटे समय में कुछ कर पाते हैं। अखिला जी कहाँ हैं? अखिला जी हमारे कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत आगे हैं, और सीमा जी तो खैर इतना ज्यादा प्रैक्टिस कराती हैं कि आप पूछिए मत। मैं बहुत इस बात के लिए अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव दिस ग्रुप, एंड टुगेदर we are now going to work next 3 months to bring a very strong, meaningful program in the summer time. आप सब लोगों को उसका हम नोटिफिकेशन भेजेंगे। सीमा जी, यू प्लीज टेक ओवर एंड लेट, जो भी जिसको कुछ कहना हो कह लीजिए, और समय हो गया है, काफी लोग जा चुके हैं जी। तो इट इज फॉर यू टू मेक श्योर दैट वी आर ऑल इनवाइटेड। तो बस अंत में मैं एक बस अपने मन की बात कहना चाहूंगी कि मेरा बहुत ये मन है अशोक जी कि हमें कहीं से कोई ऐसी स्पॉन्सरशिप मिले कि हम अपने बच्चों को जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो उन्हें भारत ले जाकर दिखा पाए। हम कोई एजुकेशनल टूर अपने बच्चों को करा पाए भारत। सुमन जी हैं, सुमन जी से योग्य कौन हो सकता है? सुमन जी, आप हमारी एक आध ट्रिप स्पॉन्सर कर दीजिए, हम अपने बच्चों को वास्तव जी, में लद्दाख ले जाकर दिखाना अशोक जी चाहते हैं। आएंगे हमारे कौंसलावास में तो बात करते हैं, देखते हैं कैसे हो सकता है। बिल्कुल, हम लोग भी चाहते हैं कि हम कुछ करें और हम लोगों के बीच में सब लोगों का सहयोग भी बना रहे, तो देखते हैं। मतलब जितना भी किताबी और जितना हम व्यवहारिक ज्ञान दे सकते हैं वो तो हमने दिया, अब आप उन्हें कोई उस ज्ञान को प्रैक्टिकल करने का मौका कुछ दीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। कोई हमारी छोटी एजुकेशनल ट्रिप बच्चों के लिए स्पॉन्सर हो जाए जहां वो अपने टीचर्स के साथ, अशोक जी के साथ, अशोक जी को भी मैग्नेटिक हिल देखनी है, वो देख पाए। तो ऐसा कुछ अगर संयोग बने तो मुझे लगता है वो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा और भाषा को भी इससे बहुत आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, तो देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे हो सकता है, तो जी, तो वो तरह से काम करेंगे। देखिए हमारे